योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि. In this module, these are the sutras. We are in chapter 2. We started with chapter 2. This module we started with chapter 2, and we started from 28. Yoga Anga Anushtanat Ashuddhikshay Jnanadiptihi Aviveka Khyate Yama Niyama Asana Pranayam Pratyahar Dharana Dhyan Samadhayoho Ashtau Angani Ahimsa Satya Asteya Brahmacharya Aparigraha Yamaha शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः स्थिर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम ततो द्वंद्व अनभिघातः तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः गतिविच्छेदः प्राणायामः बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्तिः देशकाल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्मः बाह्य आभ्यंतर विषय आक्षेपी चतुर्थः ततः क्षीयते प्रकाशावरणं धारणासु च योग्यता मनसः स्वविषय असंप्रयोगे चित्त स्वरूप अनुकार इव इंद्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमा वश्यते इंद्रियाणाम् वश्यत इंद्रियाणाम्. अभी इसके बाद में वी आर गोइंग टू टेक 4 sutras of Vibhuti-pada. First 4. देश बंध चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम तत एव अर्थमात्र निर्वासन स्वरूप शून्यम इव समाधि त्रयम एकत्र संयमः. Okay. Why we have selected these sutras? Because these sutras talk about Ashtanga Yoga, the 8 limbs of yoga. So last time we saw what is yama and is niyama. Okay. I'm sure that you have already started working on them every day, as you are all very sincere, dedicated students, and you have to achieve Kaivalya in this very lifetime. So you are going to follow the roadmap of Patanjali to the world. Okay. Believe me, all these stalwarts. There's a fellow called Mahadev Vedanti. He said कि ये जो तुम योग दर्शन सांख्य दर्शन ये तुम्हें सुनने को मिल रहा है, ये तुम्हारे कई जन्मों की पुण्याई है, इसलिए तुमको ये सुनने को भी मिल रहा है इस जन्म में. नहीं तो कितने लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनको ये सुनने भी नहीं मिलता. उनको मालूम ही नहीं है कि सांख्य दर्शन क्या है, वो है योग दर्शन क्या है, और पूरी जिंदगी उनकी बीत जाती है लेकिन उन्हें हवा भी नहीं लगती, इसकी पता भी नहीं चलता उन्हें. So we should consider ourselves very fortunate. We are indeed very fortunate कि हमें ये मौका मिला है. So let's try to make the best of it. And there is no point in understanding the sutras intellectually, hypothetically. It is futile, useless. Unless we work on the sutras, unless we try to bring them in our life, it will be difficult because the old samskaras which we carry are so powerful, so strong that they will resist. They will not allow you to step on the path of yoga. They will, create all sorts of fears in you, that dangers and fears and horribilization they will do. कि ऐसा थोड़ा ना होता है, तो they will prevent you from walking on the path. But then you have to keep at it. And slowly, the samskaras of yoga will become more powerful than the samskaras of the worldly affairs. Till then, you have to do the abhyas. Okay, Patanjali will explain it later. So now we'll straightway come to asana. We saw what is yam, the first limb.
We saw what is niyam, the second limb. Now we come to asana. Now, in 195 sutras, that is the total, only 3 sutras are on asana. Can you believe that? 3 sutras. And 5 sutras are on pranayama. And this multi-trillion dollar industries of yoga has mushroomed across the globe on these 8 sutras. You see? And nobody understands them. That is the travesty of it. So Patanjali has not given any asana. That is the specific asana. जैसे भद्रासन, वीरासन, भारद्वाजासन, वीरभद्रासन, शीर्षासन, सर्वांगासन, सिद्धासन, ये सब हठयोग प्रदीपिका में आता है और दूसरे ग्रंथों में आता है. Patanjali has got nothing to do with Hatha Yoga. But Hatha Yoga has got everything to do with Patanjali's Ashtanga Yoga. If you see the text of Hatha Yoga, the very first shlok, which Swatmaram ji says, Swatmaram means he is the writer of Hatha Yoga Pradipika, the canonical text on Hatha Yoga. In the very first shlok, he says that Kevalam Raja Yogaya Hatha Vidya Upadishyate. ये जो मैं अभी तुमको हठ विद्या सिखा रहा हूं, वो सिर्फ और सिर्फ पतंजलि के राजयोग के लिए सिखा रहा है. Because Ashtanga Yoga is also known as Rajयोग. ताकि पतंजलि की जो पहली रिक्वायरमेंट है स्थिर सुखम आसनम, ये तुम्हें हासिल हो जाए. तो स्थिर सुखम आसनम समझने के पहले हम लोग हठ क्या है ये समझेंगे. यू ऑल हैव हर्ड द टर्म हठ, लेकिन उसकी एटिमोलॉजी शायद तुम्हें पता नहीं होगी. सो हकारेण कीर्तितः सूर्यः ठकारेण चंद्र उच्यते सूर्यात् चंद्रमसो योगात् हठ योग निगद्यते. So H represents the Surya Nadi. Why? Because it runs with the sun. When the sun rises in the morning, there are certain activations in the body, certain uh, aspect of the nervous system activates, and it runs with the sun. In the afternoon, when sun is overhead, it is at the peak, and it starts to wane as the sun sets. And then the Chandra Nadi becomes active, which is represented by Tha, and it runs with the moon. So it runs through the night. So it is a day and night cycle, the Ha and the Tha. In modern medical parlance, it is called circadian rhythm, a circadian cycle, the day and night cycle. And Ha, the Surya Nadi, is your sympathetic nervous system, and Tha is your parasympathetic nervous system. Sympathetic gets stimulated when you require a fight or flight or action response. And the parasympathetic is activated when it is a resting time, digesting time, repairing time. So parasympathetic is the rest, repair, digest. And sympathetic is action, fight, flight. ये दोनों systems, they are inversely proportional. They work like a seesaw. एक ऊपर आई तो दूसरी नीचे जाती है, दूसरी ऊपर आई तो एक नीचे जाती है. There has to be a perfect balance between the two. And Hatha Yoga creates that balance. Okay. It has a far-reaching effect. It affects your mood, it affects your feel-good factor. It maximizes your life, it minimizes your distress. It enhances your joy of living. All this happens, and that is why Hatha Yoga practice is necessary if you are going to achieve this Sthira Sukham Asana. That sutra is self-explanatory. Sthira means जब तुम बैठोगे. अब आगे क्या से देखो, we are talking about अष्टांग योग. यम हो गए, नियम हो गए. अभी आसन के बाद में क्या है? प्राणायाम.
So yama prepares you for practicing niyama. Yama niyama both prepare you for practicing asana. Yama niyama asana prepare you to practice pranayama. Yama niyama asana pranayam prepare you for pratyahara. So yama, niyama, asana, pranayama, pratyahar, these five, they are called the Bahiranga sadhana. Why they are called Bahiranga? Because their subjects, objects, their focus is on different things. Yama deals with relationship with the world. Niyam deals with relationship with yourself, how you're handling yourself. Asana deals with the bodily aspect of it, how stable you are. Pranayam deals with breath. Pratyahara deals with sensory organs and action organs, indriya. So, all these five are different topics. When they come together, then you are successful in Bhairanga sadhana. The door of Antaranga sadhana opens for you, which comprises of dharana, dhyan, and samadhi. They are of the same topic. The topic of dharana, dhyan, samadhi is same. You begin dharana on one object, that itself becomes dhyan, that itself becomes samadhi. Okay, this is the difference in Bahiranga and Antaranga. The first five are Bahiranga, next three are Antaranga. Okay, now, तो आगे प्राणायाम करना है, इसलिए आसन स्थिर चाहिए. स्थिर आसन रहेगा तभी प्राणायाम मुमकिन है, अदरवाइज नहीं. और उसमें अभी स्थिर कब रहेगा आसन? अगर तुमको यहाँ नहीं दुख रहा, वहां नहीं दुख रहा, यहाँ चीटियां नहीं आ रही, यहाँ पे स्पैज्म नहीं आ रहा है, तुम कितने देर अपराइट बैठ सकते हो? कितने देर? विदाउट मूविंग द स्पाइन, विदाउट मूविंग एनीथिंग, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, कितने देर लाइक अ स्टैचू बैठ सकते हो? 2 मिनट, 5 मिनट, 24 मिनट, 48 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कितने देर बैठ सकते हो? दैट इज एक्सपेक्टेड. मतलब हठ योग तुमको इस ऐसा ट्रेन करना चाहिए कि तुम जितने देर चाहो. द लिटमस, द बेंचमार्क इज 3 आवर्स, 3 घंटा. तो तुम कितने देर बैठ सकते हो? तो तुम्हारी हठ योग प्रैक्टिस तुम्हें यहां पे लानी चाहिए, स्थिर सुखम आसनम में. अब सुखम क्या है? सुखम, अगर मुझे यहाँ पे दुख रहा है, उधर दुख रहा है, मोच मुंगे आल्या पायाला, दैट इज नॉट सुखम, है ना? तो सुखम मतलब, अब देखो, पहले 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 यम आए. यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह. ये तुम्हारे जहन में उतर गया, अगर प्रतिष्ठित हो गए, प्रतिष्ठापना होगी तुम्हारे अंदर, तो तुम्हारा डिमीनर कैसा रहेगा? तुम शांत हो जाओगे, तुम्हारे किसी से झगड़ा बिगड़ा नहीं रहेगा, तो तुम स्थिर बैठ पाओगे, चंचलता कम हो जाएगी. फिर नियम भी तुम्हारे अंदर अगर प्रविष्ट हो गए हैं, शौच, संतोष, तप. संतोष है, तप है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्रणिधान है, डर किसी चीज का है नहीं अभी, तो तुम शांत बैठ पाओगे ना, स्थिर सुखम, है ना? और हठ योग से बॉडी को रेडी कर लिया है. तो यमज, ये स्थिर सुखम आसनम, स्थिर और सुखम आसन में बैठने के लिए यमों का होना जरूरी है, नियमों का होना जरूरी है. हठ योगा की बहुत सारी प्रैक्टिस जरूरी है. हम क्या करते हैं, हम पहले ही दिन जाते हैं योगा स्कूल में और बोलते हैं कि प्राणायाम सिखा देना. तो अरे, लेकिन उसकी प्रिपरेशन है पहले की, उसके बारे में कोई नहीं पूछता. वो मेरे स्टूडियो में एक दिन एक आदमी आया और मेरे को बोला कि ये तो आपका योगा क्लास ज्वाइन करना है. तो मैंने कहा हाँ जरूर कीजिए. तो फिर मेरे को बोला, वो आप चक्र वगैरह जागृत करते कि नहीं? चक्र. तो मैंने कहा कि भाई वो क्या होता है, मैं नहीं जानता. चक्र वगैरह जागृत मैं नहीं जानता उसको.
सो पीपल टेक इट इज सो लाइटली, जैसे ये मक्खन है, खेल है जैसे कुछ। सो डोंट टेक इट सो लाइटली, यू विल गेन नथिंग, यू विल गेन नथिंग। तो आसन प्रैक्टिस करने के लिए, देखो वी आर टॉकिंग अबाउट हार्ड कोर योग, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट योगा जो बाली में चलता है और जो पूरे वर्ल्ड में चलता है। वो योगा के बारे में हम नहीं बात कर रहे, हम योग के बारे में बात कर रहे हैं। तो आसन करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए तुम क्वालिफाइड हो क्या? अष्टांग योग के लिए तुम अधिकारी हो क्या? मंद अधिकारी हो, मध्यम अधिकारी हो, या उत्तम अधिकारी हो? देर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ अधिकारी। आर यू क्वालिफाइड फॉर आसन? सो मेक योरसेल्फ क्वालिफाइड। पहले यम अपने अंदर लाओ, नियम अपने अंदर लाओ, बहुत सारी हठ योगा की प्रैक्टिस करो, ताकि तुम ये पतंजलि के स्थिर सुखम आसनम में इनडेफिनेटली बैठ पाओ फॉर अ लॉन्ग पीरियड। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति। पहले बहुत प्रयत्न किया है, हठ योग से बहुत प्रयत्न किया है, यमों के लिए बहुत प्रयत्न किया है, नियमों के लिए बहुत प्रयत्न किया है। अभी मैं स्थिर सुखम आसन में बैठ पा रहा हूं विदाउट एफर्ट, एफर्टलेस। प्रयत्न शैथिल्य मीन्स एफर्टलेसली। तो स्थिर सुखम आसनम में जब तुम बैठोगे तो जरा भी एफर्ट नहीं होना, कष्ट नहीं होना, सहज होना चाहिए, एकदम सहज। और इसलिए प्रॉप्स लेके बैठो, इसलिए गुरुजी बोलते थे प्रॉप्स लो। नहीं बैठ पाते हो, सपोर्ट लो, बैक सपोर्ट लो, क्योंकि स्पाइन अपराइट रखना इज मैंडेटरी। क्योंकि सब कुछ जो होता है, दळण ज्याला म्हणतो आपण, जो कोई भी ट्रांसफर ट्रैवल, जो कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन सब होता है, वो स्पाइन में होता है। स्पाइन इज सपोज पाइपलाइन जिसमें से एनर्जी फ्लो होने वाली है। पाइप, अगर एक पाइप समझ लो उसको, तो पाइप अगर आड़ा टेढ़ा होगा तो वो उसमें से पानी क्लियरली फ्लो नहीं होगा ना, हैम्पर हो जाएगा, हिंड्रेंस आएगा। वैसे स्पाइन का, इसलिए स्पाइन अपराइट रखना है बहुत जरूरी है, स्थिर रखना जरूरी है। तो स्थिर स्थिर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य। ये जब होता है ना, तो देर इज अ कॉग्निटिव शिफ्ट इन योर राइट ब्रेन हेमिस्फीयर। जब स्थिर सुखम आसनम होता है, प्रयत्न शैथिल्य होता है, automatically there is a shift, there is a cognitive shift. And when it is in the right hemisphere, you get that spatial feeling, matlab space, and you can diffuse your mind in ananta. Ananta, understand what is ananta? अनंत मीन्स अनादि, कि जिसका आदि किसी ने देखा नहीं है और जिसका अंत किसी को मालूम नहीं है। सो इट हैज नो बिगिनिंग, इट हैज नो एंड। दैट इज द मीनिंग ऑफ अनंत। ओके। अब अनंत में समापत्ति कहा है पतंजलि ने। समापत्ति का अर्थ है बिकमिंग लाइक, बिकमिंग लाइक। मतलब फॉर एग्जाम्पल, तुमने अगर एक एक स्फटिक मणि लिया, a gem which is absolutely pure, उसमें कुछ भी फॉल्ट नहीं है, उसमें कोई भी कलर नहीं है, इट इज कलरलेस। इतना कलरलेस कि उसको पानी में डालो तो वो गायब हो जाएगा, इतना कलरलेस है वो। हाँ, ऐसा वो मणि लिया तुमने एक स्फटिक का, और उसको तुमने रेड रोज के ऊपर रखा, तो वो लाल रंग का दिखेगा, है ना? उसका खुद का तो कलर है ही नहीं। तो उसकी लाल रंग के साथ समापत्ति हो गई। फिर उसने उसको तुमने उठा के पीले गुलाब के ऊपर रख दिया, तो वो पीला दिखेगा। तो उसकी पीले रंग के साथ समापत्ति हो गई। दिस इज द मीनिंग ऑफ समापत्ति। अब यहां पे पतंजलि कहते हैं अनंत समापत्ति, अनंत के साथ समापत्ति।
मतलब योर कॉग्निटिव फैकल्टी should merge with infinity, which means what? Yeah, that, why he's asking to do this? Because he wants you to be egoless. यहाँ क्योंकि क्या है, when you are doing आसन, yes, बरखा, Sir, what do you mean by when you say cognitive facility should be? क्या? What did you mean when you said that your cognitive facility should be enhanced? No, no, no. Listen, I'll explain it. Just go on Okay. listening. Go on listening. I'll explain that. आसन जब तुम करते हो हठ योग का, तब तुम्हारे मन में क्या विचार रहता है? अगर तुमको एक डिफिकल्ट आसन जैसे बकासन हो गया, जम गया, तो तुम्हारे मन में क्या विचार रहता है उस वक्त? डू यू फील? शीर्षासन तुमको जम गया, परफेक्ट शीर्षासन अगर तुमको जम गया और तुम शीर्षासन में हो, तो व्हाट इज योर cognition at that time, Barkha? What is your cognition? You know, I am doing Shirshasana. Yes, I yes, am yes. successful in Shirshasana. The others are watching me in Shirshasana. Invariably, when people are successful doing Shirshasana in a class, they are so very conscious that everybody is watching me, so that me, mine. Patanjali doesn't want that I, me, mine in asana. And that is why he is giving specific instruction, Ananta Samapatti. Diffuse, dissolve your mind in universal mind, which is infinite, which is Ananta. And get rid of this individuality which you harbor. I have got about 150 students in my studio. Everybody is competing. उससे अच्छा मेरा कब कैसा कब होगा, मैं उसके जैसा कब कर पाऊंगा, मेरा फ्लेक्सिबिलिटी क्यों कम है, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी मेरे को कब मिलेगी. द एंटायर फोकस इज ऑन फिजिकलिटी. मेरा ये कब ठीक हो गया होगा, मेरा वो कब ठीक होगा, मेरा ये थायराइड ठीक हो जाएगा क्या. पीपल टर्न टू योगा बिकॉज डॉक्टर सेज कि अभी जाओ, अभी योगा बीगा करो कुछ. देन पीपल टर्न टू योगा, टुडे. So Barkha, are you getting this? तो Yes, it's wonderfully explained. yeah, तो Patanjali doesn't want that, and that is why he is specifically mentioning here Ananta Samapattityam. तो अभी तुम इमेजिन करो, एंड उसके बाद का सूत्र है वो कहता है ततो मीन्स देन, ततः मीन्स देन, द्वंद्व अनभिघात. द्वंद्व मीन्स कॉन्फ्लिक्ट्स. And the conflicts, whatever conflicts you are having, whatever conflicts, with the physical, with the mental, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, उनका अनभिघात हो जाएगा उस वक्त के लिए. अनभिघात मीन्स दे विल बी केप्ट एट बे. दे विल स्टॉप इंटरफियरिंग इन वॉट एवर यू आर डूइंग. दे विल नॉट डिसअपियर, बट दे विल बी केप्ट एट बे. उनको अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा. ततः द्वंद्व कॉन्फ्लिक्ट्स अनभिघात. फिर तुम कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, उस वक्त के लिए वो तुमको अफेक्ट करना बंद कर देगी. ये अनुभव की बात है, ये करके देखना है तुम्हें. और बिल्कुल बिल्कुल साफ साफ है, ये कोई डिफिकल्ट नहीं है.
तुमको यमों के बारे में सोचना है, वो अपने जिंदगी में उतारना है। तुमको नियमों के बारे में सोचना है, वो अपने जिंदगी में उतारना है। तुमको हठ योग की इतनी प्रैक्टिस करनी है ताकि तुम स्थिर सुखम आसनम में अपराइट स्पाइन से बैठ पाओ, प्रयत्न शैथिल्य के साथ, मतलब एफर्टलेसली। वैसे बैठ के तुम अपने मन को उस अनंत में डिसॉल्व कर दो। तो ऑब्वियसली द्वंद्व का जो अभिघात, अभिघात मतलब अटैक, वो रुक जाएगा, है ना। जब तुम स्थिर सुखम आसन, तब तक के लिए एटलीस्ट, फिर तुम उठोगे अपने योगाभ्यास से, फिर से वो परेशानियां और सब तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगी। ये है वो है, हस्बैंड की बात है, बच्चों की स्कूल, ये वो जो भी है, परेशानियां, कॉन्फ्लिक्ट्स, फिर से हावी हो जाएंगी। लेकिन उस वक्त के लिए तो नहीं होगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तुम जस्ट सोचो कि यम तुम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये तुम्हारी नींव है जीने की। फिर शौच प्रैक्टिस करते हो, कंटेंट रहते हो, तपस, कायेंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षय, तपस करते हो, स्वाध्याय करते हो, ईश्वर प्रणिधान में हो, तो तुम्हारा डिमीनर कैसा रहेगा? व्हाट विल बी द टेक्सचर ऑफ योर चित्त? हाँ। और फिर तुमने हठ योग भी किया है, और फिर अभी स्थिर सुखम आसन में बैठ गए, और अनंत समापत्ति लगा दी है उधर, और सब परेशानियां उस वक्त के लिए दूर हो गई है। तो ऐसे सिचुएशन में, बहुत गौर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसे सिचुएशन में तुम्हारी सांस कैसे चलेगी? योर ब्रीदिंग। हाँ। स्थिर सुखम आसनम में जब प्रयत्न शैथिल्य हो गया है, अनंत समापत्ति हो गई है, द्वंद्व द्वंद्व अभिघात नहीं कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में तुम्हारा श्वसन कैसे चलेगा? तस्मिन सति, उस सांस पर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड विच पीपल मिस, तस्मिन सति। जब वैसी वैसी वाली सांस जब चल रही है, तब श्वास प्रश्वास यो हो गति विच्छेद प्राणायाम। तो वो जो ब्रीदिंग चल रहा है, वो जो टाइडल ब्रेथ चल रही है तुम, उसमें श्वास चल रहा है और प्रश्वास चल रहा है, उसकी एक नैसर्गिक गति शुरू है। वो नैसर्गिक क्यों है? क्योंकि स्थिर सुखम आसनम हुआ है, प्रयत्न शैथिल्य हुआ है, अनंत समापत्ति हुई है, द्वंद्व अनभिघात हुआ है। ये सब होने पर जो सांस चलेगी, उस सांस पर प्राणायाम करना है। कोई भी सांस पर प्राणायाम नहीं होता। तुम गार्डन में सुबह जॉगिंग करके आए, ऐसे ऐसे बैठ गए एक जगह, और फिर बैठ के तुमने चालू कर दिया। वो भी ऐसा देख रहे, कौन कौन देख रहा है मेरे को, मैं अभी प्राणायाम कर रहा हूँ। दैट इज नॉट प्राणायाम, दैट इज श्वासायाम। यू कैन कॉल इट श्वासायाम, बट इट इज नॉट प्राणायाम। Most important word in the sutras of Ashtanga, तस्मिन सति। जब वो सांस चल रही है तब, जब वो काम चल रहा है तब, तब जैसे कोई कोई गर्ल्स को, लेडीज को आदत रहती है, द मोमेंट दे स्टार्ट कुकिंग, दे विल स्टार्ट हमिंग, गाना गुनगुनाने लगते हैं। मेरी बहू है, मेरे बहू को वो आदत है। द मोमेंट शी एंटर्स किचन,
वो किचन में घुसी और उसने वो शुरू किया कि उसका गुनगुनाना चालू हो जाता है टिल शी फिनिशेस। दैट इज द मीनिंग ऑफ तस्मिन सती। जब वो चल रही है सांस, तो प्राणायाम जितने देर चलने वाला है उतने देर ये होल्ड करना आवश्यक है। स्थिर सुखम आसनम, प्रयत्न शैथिल्य, अनंत समापत्ति, द्वंद्व अनभिगा। क्योंकि वो सब रहने पर जो श्वसन चलेगा, जो श्वास प्रश्वास चलेगा, उसी का विच्छेद विशेषेण कारणेन छेदन, विच्छेद विथ स्पेसिफिक पर्पस इंटेंट, तब वो प्राणायाम कहलाएगा। ये प्राणायाम का ये वीकेंड वर्कशॉप है, हाँ, प्राणायाम का। द एनर्जी एक्सचेंज इज 2000। क्या तुम प्राणायाम सीखोगे? कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये बाकी की प्री रिक्विजिट्स के बारे में कोई बात ही नहीं करता। हमको प्राणायाम सीखना है, जैसे कुछ तो भी मिरेकल होने वाला है। डॉक्टर ने बोला है ना, तो जाओ योगा बीगा करो, वो कुछ प्राणायाम मेडिटेशन वो कुछ करो, अच्छा रहे, अच्छा तुम्हारे लिए। मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गया है, बीपी बढ़ गया है, पैल्पिटेशन होने लगा है, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गया है, हाई ट्राइग्लिसराइड्स हो गए हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ओबिसिटी आ रही है, टाइप 2 डायबिटीज हो गया है। जाओ योगा करो। दैट इज योगा, नॉट योग। इतना समझ गए फिर? So now you know how what asana should culminate into. बाह्य मीन्स प्रश्वास, बाहर जाने वाली। अभ्यंतर मीन्स अंदर आने वाली। स्तंभ, स्तंभ मीन्स रिटेंशन। उस वक्त कुंभक वर्ड नहीं था पतंजलि के टाइम, इसलिए पतंजलि कुंभक ये बाद में आया है वर्ड, हठ योग प्रदीपिका वगैरह में आया है। पतंजलि के टाइम में स्तंभ वॉज द वर्ड। स्तंभ मीन्स स्टैचू। हम लोग बचपन में स्टैचू गेम खेलते थे, याद है? हाँ, भागम भाग करते थे, और एकदम कोई तो बोल देता स्टैचू, और फिर तुम सब लोग स्टैचू जैसे हो जाते थे, राइट? सो बाह्य एक्सपिरेशन, एक्सलेशन। अभ्यंतर इंस्पिरेशन, इनहेलेशन। स्तंभ रिटेंशन, कुंभक। यह आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति ही, ये वृत्ति है तुम्हारे श्वसन की, ये वृत्ति है जो अपने आप हो रही है। तुम अपने आप श्वास ले रहे हो, तुम अपने आप श्वास छोड़ रहे हो, तुम्हारी सिस्टम ब्रीथ कर रही है। देखो अभी, अभी तुम मेरी बात सुन रहे थे, अभी कितना आधा पौन घंटा हो गया मेरी बात सुन रहे हो, तुम्हारा ब्रीदिंग तो शुरू है। वो कौन कर रहा है? दैट इज योर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हु इज टेकिंग केयर ऑफ योर ब्रेथ। तो श्वास भी ले रही है, प्रश्वास भी कर रही है, और बीच बीच में वो कुंभक भी होता है, लेकिन ऑल इज नेचुरल, all is system originated. You have respiratory centers in your medulla. Okay, they get a constant feedback from your body. They get a feedback कि ये प्राणी क्या कर रहा है, खड़ा है, बैठा है, दौड़ रहा है, बात कर रहा है, इसके ब्लड में सेचुरेशन कितना है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, इसकी पीएच पोटेंशियल हाइड्रोजन लेवल क्या है। ये सब फीडबैक वो रेस्पिरेटरी सेंटर्स को मिलता है, और वो डिसाइड करते हैं कि तुम्हारा अगला इनहेलेशन कितने कितना होना चाहिए। नेक्स्ट इनहेलेशन, बहुत सारी कैलकुलेशन जाती है एक एक सांस के पीछे, एंड देन अकॉर्डिंगली
electrochemical signal is generated in the medulla. It travels through the phrenic nerve to the diaphragm and gives a shock to diaphragm. Diaphragm contracts. The lungs are sitting on the diaphragm. They are pulled down, increasing in volume. Negative pressure is created inside the lungs, and God has given you two holes here. The air goes in. That is the science of inhalation. The moment your inhalation is that much volume is taken, the signal stops. That electrochemical signal stops and diaphragm relaxes. When it contracts, it moves towards the pelvis. When it relaxes, it moves upward. When it moves upward in relaxation, the lungs are again compressed and exhalation happens. So, Bahya Vritti, Abhyantara Vritti. And there is a Stambha Vritti also when there is enough oxygen in the blood. There is no need for to go for next inhalation. तो एक हल्का सा pause हो जाता है breathing. But it is natural. तो ये naturally जो तीन चीजें हो रही है, बाह्य वृत्ति अभ्य मतलब एक्सलेशन, इनहेलेशन एंड रिटेंशन, ये जो नेचुरली हो रहा है, दैट इज द वृत्ति. सो बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति. अब ये वृत्तियों का जो नेचुरली हो रही है, जो नेचुरल उनकी गति है, उसका विच्छेद करना. विशेषण कारण छेदन मतलब मैं इनहेलेशन मैनिपुलेट करूंगा, मैं मॉड्यूलेट करूंगा, एक्सलेशन मॉड्यूलेट करूंगा और स्तंभ भी मॉड्यूलेट करूंगा जब होगा. और वो मॉड्यूलेट जब करूंगा मैं, तो उसको मैं देश, काल और संख्या, इन तीन चीजों से मैं उन्हें ऑब्जर्व करूंगा. देश. अभी आंखें बंद कर लो. आप सब लोग आंखें बंद करेंगे और सीधा बैठो, एकदम सीधा, जितना चलता है उतना. स्थिर सुखम आसन में यू कैन टेक सपोर्ट ऑफ द बैक ऑफ द चेयर इफ यू वांट. एकदम स्थिर बैठ जाओ एंड स्टार्ट ऑब्जर्विंग द ब्रेथ. Now take your focus to your Muladhara chakra. That is the base, the bottom of the pelvis, the pelvic floor. Muladhara chakra, the pelvic floor. वहां पे अपने मन को ले जाओ और वहीं रुक जाओ. एकाग्र हो जाओ वहीं पर, पेल्विक फ्लोर, मूलाधार रीजन में. और जो सांस आ रही है वो वहां तक पहुंचाओ. जो अंदर आती हुई सांस जो है वो मूलाधार तक टच कर रही है, मूलाधार को टच कर रही है, और वहीं से एक्सेल हो रहा है, एक्सेलेशन शुरू हो रहा है. अभी ना तुम्हारा फोकस राइट नी पर ले जाओ, राइट घुटना. राइट घुटने में इनहेलेशन पहुंचने दो और वहीं से एक्सहेलेशन भी करो. तो राइट नी, इमेजिन करो कि ब्रेथ इनहेलेशन वहां तक पहुंच रहा है, राइट घुटने तक, और एक्सहेलेशन भी वहां से निकल रहा है. अभी तुम्हारा फोकस लेफ्ट शोल्डर पे ले जाओ और लेफ्ट शोल्डर में इनहेल करो और वहीं से एक्सहेल करो.
भी आंखें खोलो. सो अंडरस्टैंड, इन pranayam we are concerned with systemic breath or cellular respiration. We are not concerned only with the respiration of lungs. क्योंकि देखो, जब तुम सांस अंदर लेते हो, एयर अंदर लेते हो, तो वो तुम्हारी एल्वियोलीज तक के ट्रैवल करती है. मतलब लंग लंग इज लाइक अ ट्री, और वो ट्री का हर एक पत्ता इज अ एल्वियोली. वहां तक वो एयर जाती है. दैट एरिया इज वेरी रिच इन वेरी सुपर फाइन कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज. और वहां पे एयर एक्सचेंज होती है, एयर बैरियर है वो, ब्लड एयर बैरियर. तो एयर में, यहाँ ये देखो, ये अपरिग्रह का बहुत सुंदर उदाहरण है नेचर का. हाउ नेचर वर्क्स. जो सांस अंदर लेते हो उसमें ऑक्सीजन ज्यादा रहता है, ब्लड में कम रहता है. ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्रेशर एयर, इनहेल्ड एयर में ज्यादा रहता है, ब्लड में कम रहता है. तो नेचर क्या करती है, जहां में कम है वहां पे दे देती है. सो ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इन ब्लड, और फिर वो आगे वो ऑक्सीजन पूरे हर पेशी को पहुंचता है. हार्ट पंप करता है उसको. सो एवरी सेल तक के वो इनहेलेशन पहुंचता ही है एक्चुअली. ये कुछ हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन नहीं है. और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादा है, इनहेल्ड एयर में कम है. और नेचर का रूल है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, वो प्रेशर इक्वलाइज करो, समभाव सम करो. तो ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड एयर में डिफ्यूज होता है, जो तुम एक्सहेल करते हो. दिस इज फैंटास्टिक एग्जांपल ऑफ अपरिग्रह, नॉन होल्डिंग. नेचर नेवर होल्ड्स. लेकिन हम सीखते नहीं है कुछ नेचर से. तो वो जो इनहेल एयर है, वो शरीर के हर पेशी में ट्रैवल करती है. तो जब मैं तुम्हें कह रहा था कि घुटने में इनहेल करो, तो एक्चुअली घुटने में इनहेल हो ही रहा है, एक्सहेल भी हो ही रहा है. तुमको सिर्फ तुम्हारा फोकस वहां लेके जाना है, और वो ऑब्जर्व करनी है, वो ब्रेथ वहां पे, सेल्यूलर ब्रेथ ऑब्जर्व करनी है. लेफ्ट शोल्डर, एनीवेयर इन द बॉडी, दैट इज द देश पार्ट. तो जब प्राणायाम करोगे तो देश होना जरूरी. दिस इज पतंजलि प्राणायाम, हाँ. दिस इज द क्लासिकल राजयोग प्राणायाम. ये तुमको जो क्लास में सिखाते हैं, शीतली एंड चितकारी एंड उज्जयी और अनुलोम विलोम, ये सब नहीं है यहाँ. ये सब पतंजलि ने नहीं बताया है. वो अगेन घेरण संहिता हठ योग प्रतिविका इसमें आए हैं. पतंजलि के ये प्राणायाम है, वेरी स्पेशल, वेरी क्लासिक राजयोग प्राणायाम है ये. तो देश को ऑब्जर्व, परिदृष्टो मीन्स वेरी कीनली ऑब्जर्व. परिदृष्टो मीन्स देख, दृष्टो मतलब देखना, परि मतलब सुपर फाइन ऑब्जर्वेशन. मतलब कैसे. तो अगर मैं हाथ देख रहा हूं, ये मेरा हाथ देख रहा हूं, मैं हाथ की लकीरें देख रहा हूं, ये लकीरें मुझे भी हाथ की, मेरे को ऐसी दिख रही है, बराबर. अब अभी ये हाथ जो है, मैंने लेंस लिया, लेंस, और लेंस से देखने लगा तो एकदम क्लियर दिखने लगेगी वो लाइंस. अब मैंने हाथ माइक्रोस्कोप के अंदर डाल दिया, तो लाइंस तो गायब हो जाएगी, लेकिन सेल्स दिखने लगेगी, सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स दिखने लगेंगे. वो तो अलग ही नजारा होगा. तो मतलब जब तुम्हारी दृष्टि कीन होती है, जब परिदृष्ट होने लगती है, तो जो तुमको आमतौर पे दिखता है उससे कई डेप्थ में दिखेगा. तो योगी लोग को वैसे दिखता है, साधना से. अच्छा, फिर उसके बाद में मैंने ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर डाल दिया हाथ को. अब तो मेरे को सेल्स भी नहीं दिख रहे, अब तो मेरे को न्यूक्लियस दिख रहा है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, क्वार्ट्स, ये सब सब एटॉमिक पार्टिकल्स दिखने लगे अब मेरे को. हाँ, वही हाथ है, हाथ वही है. दैट इज द मीनिंग ऑफ परिदृष्टो. तो धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारा ऑब्जर्वेशन इतना पावरफुल होना चाहिए, माइक्रोस्कोपिक होना चाहिए. तो सबसे पहले देश, ठीक है. So can I ask अभी you a फिर से, question?
सॉरी। हाँ, या पूछो। शशि। सर, जब आप बोल रहे हैं देश, देश मीन्स द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन और व्हाट, लाइक इफ लोकेशन, लोकेशन। you just while doing pranayam focus on one location and just keep looking at that is what we are trying to understand. यस, there has to be a location. In according to Patanjali's pranayam, there has to be a location when you practice pranayam inside, Okay. inside the body. ठीक है? अभी फिर से आंखें बंद करो. Close your eyes. Now focus on the length. Now let the days be your heart. So you are inhaling in your heart, exhaling from the heart. So desh is fixed. The second parameter is kal. So let the duration of inhalation and exhalation be the same. 5 seconds inhalation, 5 seconds exhalation. If you can do it longer, 6 seconds inhalation, 6 seconds exhalation. You can count in your mind. Open your eyes. तो अभी देखो, देश तो फिक्स हो गया है. ये देखो, इसकी तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. हाँ, ये ऐसा एक दिन में नहीं आने वाला. वर्क ऑन इट एंड डिस्कस विद मी नेक्स्ट सैटरडे. तो देश तो फिक्स हो गया, आपने हार्ट फिक्स कर लिया, ठीक है. तो पहले देश को एस्टैब्लिश कर लो, फिर उसमें काल जोड़ दो. तुम देश मतलब इनहेल कर रहे हो तो हार्ट को टच कर रहे हो, और एक्सेल कर रहे हो तो हार्ट से वापस नॉस्ट्रिल से बाहर, नॉस्ट्रिल तक क्या आ रहे हो, नॉस्ट्रिल से हार्ट तक. कितना टाइम लग रहा है? 5 सेकेंड. हार्ट से नॉस्ट्रिल तक 5 सेकेंड. फिर उसका रेशियो तुम धीरे धीरे चेंज कर सकते हो, लेकिन वो बहुत बात की बात है. वो विदाउट टीचर नहीं करने का. वो 1:4:2 वगैरह ऐसे सब जो रेशियो तुम सुनते हो ना प्राणायाम में. Equated breath is very safe. It will improve your HRV, heart rate variability, which is a parameter of the tone of your autonomous nervous system. So equated breath मतलब inhalation and exhalation of the same duration at a specific location. ये तुम सेफली कर सकते हो. फिर से आंखें बंद करो और शुरू कर दो ब्रीदिंग. हार्ट में, हार्ट इज द देश, काल इज इक्वेटेड. 5 काउंट्स इनहेलेशन, 5 काउंट्स एक्सहेलेशन. और अभी संख्या, start counting the breath. One inhalation, one exhalation is one count. One inhalation, one exhalation is one count. तो 1, 2, 3 चालू करो, रखो काउंटिंग. रिलैक्स, ओपन योर आईज. तो अभी क्या, अभी तुम्हारे पास 3 पैरामीटर्स है. देश है, काल है, और काउंटिंग है, संख्या है. ठीक है, ये करो हफ्ता भर, और फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे. यू हैव टू प्रैक्टिस दिस. अलग अलग लोकेशंस लो, कुछ भी लोकेशन चेंज करो. लोकेशन ब्रेन लो, जो तुम्हारे षट चक्र है वो लो. अभी मूलाधार लिया, स्वादिष्ठान लो, मणिपुर लो, अनाहत लिया अभी हमने, विशुद्ध लो, आज्ञा लो, एक्सट्रीमिटीज लो, लिम्स के, हैंड्स लो, पाम्स लो. चेंज द लोकेशन, बट वर्क ऑन द. फिर एक एक फिक्स कर देना, फिर लोकेशन एक्सपेरिमेंट करो, वो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, एंड देन फिक्स वन लोकेशन.
और फिर उस लोकेशन पे फिर तुम काल करो। अभी फिलहाल इक्वेटेड ही करेंगे, 5 काउंट्स या 6 काउंट्स या 7 काउंट्स, तुमको जो भी कंफर्टेबल है, या 4 काउंट्स, 4 काउंट इनहेलेशन, 4 काउंट एक्सहेलेशन। और देश मेंटेन रख के, काउंट काल मेंटेन रख के कहां तक के गिनती कर सकते हो? 1 2 3 4, ये तीनों तीनों चीजें एक साथ करना है, हाँ? कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ऐसा सोचो कि तुमको एक गोल पोस्ट दिया है, एक दौड़ लगानी है छोटी सी तुम्हारे आंगन में। तुमको ये एंड से शुरू करना है, और वो दूसरे एंड का जो वहां पे पोल है उसको टच करके वापस आना है। तो देश तो फिक्स हो गया। और तुमको वही स्पीड से, मतलब जैसे 25 स्टेप्स में तुमको चलते हुए जाना है, 25 स्टेप्स में तुमको वापस आना है। तो वो भी फिक्स हो गया, स्पीड भी फिक्स हो गई। अभी तुमको क्या करना है? सिर्फ गिनना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितने बार टच करके आए देश को, ऐसा। ठीक है, तो विल स्टॉप हियर नाउ। आई डोंट वांट टू गो अहेड, बिकॉज आई वांट यू to work on this, and we'll discuss the results. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti.